Good afternoon, Prince. How are you? I am well, ma'am. Okay. Where are you from? Mumbai, Mumbai? Mumbai, Maharashtra. Okay. And I'm from UP. Yeah. So first of all, please introduce yourself. हिंदी में बोलूँ चलेगा? हिंदी में बोलूँ चलेगा? Try to speak in English. Can you introduce yourself in English? आप अपने आप मैम को मुझे इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इंग्लिश में? नहीं. बिल्कुल भी नहीं. So if I ask question that what's your name? My name is Prince Pandey. Okay. And yeah, you live in Mumbai. Okay. In which class do you study? Graduation. I am studying graduation. Okay. And what's your native language? Hindi. Hindi. But in Maharashtra, you know, there is, you know, Marathi is spoken, I think. मतलब I am stay in UP. You We belong to currently UP. live in. Okay, okay. So your native place is, I think, UP. You were originally from UP, right? Yes. From which district? Pratapgarh. Pratapgarh. So you were born and brought up at Pratapgarh, but currently you are living in Mumbai, right? Yes. So how long have you been there? आप कितने समय से वहां रह रहे हो? Last 15 years. Last 15 years. Okay. So what's your father? आपके पापा क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं. Okay. And you are studying there, right? And do you love English language? No, लेकिन थोड़ा बहुत सीखना है. तो जब इंसान किसी चीज को पसंद करता है तभी तो सीखना चाहता है. You can say that yes, ma'am, I love this language. That's why I want to learn this language, right? So what are your subjects in your graduation? जैसे अभी सब इंग्लिश में ही है मतलब. Okay. बीकॉम. You are doing BCom. Yes. Okay. So you can write English? I can write. And you can read English? Yes. And when you listen my videos, so you are able to understand all the points? Yes, ma'am. Okay. So it means you can read, write, and understand English, but you can't speak English, right? Yes, ma'am. Okay. So do you know basic sentences? Can you translate basic sentences of English? You know how to convert sentence like simple sentence, present indefinite, past indefinite, and future indefinite. Can you convert? No, ma'am. Okay. So when you were completing your 12th, that time what were your subjects? OCM, economics, English, or IT. Okay. So do you have problem when you write something in English? I think your English is weak, right? Yes, ma'am. Okay. And you never took any tuition? No. You do self-study, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And your school teacher doesn't teach you well? पढ़ाते लेकिन मैं सेल्फ स्टडी ही पढ़ता हूँ तो मेरे को तो इंग्लिश आता नहीं. Okay. So simple sentences you can translate that मैं एक लड़का हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं एक बहादुर इंसान हूँ. This type sentences you can convert? Yes, ma'am.
ओके, नाउ टेल मी लाइक मैं एक बहादुर लड़का हूँ, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं एक बहादुर लड़का हूँ, इसको पहले ट्रांसलेट करो। I am brave boy. ब्रेव बॉय, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, तो क्या बोलेंगे? I am wake up early. अब Early यहाँ पे I am एम wake नहीं up early. लगाएंगे, यहाँ गेट अप लगाएंगे। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या यूज करेंगे? Wake up. गेट अप। तो आप जो भी काम डेली करते हैं, जैसे मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, है ना, मैं सुबह टहलने जाता हूँ, मैं अपनी मम्मी की मदद करता हूँ, मेरी मम्मी सुबह खाना बनाती हैं, तो ये डेली के काम हो गए, डेली रूटीन के काम हो गए। तो इन्हें इंग्लिश में जब बनाते हैं तो बस सब्जेक्ट आई मीन जो भी हो, जैसे आप अपने बारे में बता रहे हैं तो आप आई का यूज करेंगे, आप अपनी मम्मी के बारे में बता रहे हैं तो माई मदर, पापा के बारे में माई फादर, या अपने फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं तो उसका नाम लेके। फिर उसके बाद आपको सीधे वर्ब का यूज करना है। एक्शन वर्ब आप जानते होंगे ना, जैसे प्ले, Helping work. गेट, यस। एक्शन वर्ब अलग होती हैं और हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। हेल्पिंग वर्ब होती हैं जैसे इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव एंड वाज, वर, लाइक दिस। ओके। और एक्शन वर्ब होती हैं जो भी हम लोग काम करते हैं सुबह से शाम तक, जैसे कि उठना, बैठना, खाना पीना, नाचना, गाना, है ना, ये एक्शन वर्ब होती है। एक्शन मतलब काम करने वाले सब, एक्शन मतलब काम करने वाले सब। Um, तो जब हमारा ये सेंटेंस बनना है कि मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, तो सबसे पहले आई, फिर आपको वर्ब बोलनी है कि गेट अप। मैं करता क्या हूँ? गेट अप, मैं उठता हूँ, आई गेट अप। और सुबह जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे बन गया। फिर आपने कहा मैं एक ग्लास गर्म पानी पीता हूँ, थोड़ा सा गुनगुना हल्का पानी कहते हैं, रोज सुबह पीना चाहिए। तो अगर आपको कहना है कि मैं एक ग्लास गर्म पानी पीता हूँ, तो पीने के लिए आप ड्रिंक भी यूज कर सकते हैं, टेक भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो आई टेक 1 ग्लास ल्यूक वाटर। ल्यूक मतलब हल्का गुनगुना पानी होता है, हॉट मतलब तो वो तो ज्यादा गर्म हो सकता है ना। तो आई टेक 1 ग्लास ल्यूक वाटर। ठीक है, आपने देखा मैंने क्या किया, आई के बाद सीधे टेक बोला, वर्ब बोली। ओके। फिर आपको कहना है मैं ब्रश करता हूँ, मैं अपने दांत ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ। ओके। अब आपने कहा मेरी मम्मी नाश्ता तैयार करती हैं, तो पहले आप क्या बोलेंगे? माई मदर। फिर उसके बाद अब सीधे तैयार करना की इंग्लिश आएगी, वो करती क्या है? एक्शन वर्ड आ गया। यहाँ इज आर एम का यूज नहीं हो रहा, ये भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन वर्ड है तो इज आर एम का यूज नहीं करते। जब आप अपने बारे में बताएंगे मैं एक चालाक लड़का हूँ, मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, मैं होशियार हूँ, तो आप एम का यूज करेंगे कि आई एम ऑनेस्ट बॉय, आई एम अ ब्रेव बॉय, आई एम अ गुड बॉय, तो एम का यूज हो रहा। अब आपका एक्शन वर्ड आ गया कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो आप आई के बाद एम का यूज नहीं करेंगे, आई के बाद सीधे एक्शन वर्ड का यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ okay. गई कि हाँ, तो वो वाला सेंटेंस हम बना रहे थे कि मेरी मम्मी नाश्ता तैयार करती है, माय मदर। अब एक चीज और याद रखिएगा, जब हम आई के बारे में बात करते हैं तो हम एक्शन वर्ड में एस का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब थर्ड पर्सन आ जाता है, किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं हम, थर्ड पर्सन की बात में कि मेरी मम्मी या पापा या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आप मान लो, जैसे फ्रेंड्स, या आपने किसी का नाम ले दिया राम, श्याम, मोहन, ठीक है, तो उनमें फिर वर्ब में हमें एस जरूर ऐड करना होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि माई मदर प्रिपेयर, आपको बोलना पड़ेगा प्रिपेयर्स। माई मदर प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मेरी मम्मी सुबह खाना बनाती हैं, नाश्ता बनाती हैं। आया समझ में? आप कहेंगे मैं नाश्ता बनाता हूँ, तो आप कहेंगे आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। मम्मी के लिए बोलेंगे माई मदर प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट, है ना। अब आपको कहना है मेरे पापा रोज सुबह बाहर जाते हैं, तो माई फादर गोज, गो में ईएस लगा दिया, गोज आउटसाइड डेली। Daily मेरे work. पापा रोज बाहर जाते हैं, माई फादर गोज आउटसाइड डेली। मैं रोज बाहर जाता हूँ, आई गो आउटसाइड डेली। इतनी बात समझ में आई? क्या कहा मैंने कि Okay. आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ये प्रोनाउन है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें एस नहीं लगाते हैं। आप
अगर इफ यू हैव एनी नोटबुक एंड पेन, सो यू कैन राइट ऑल्सो. डू यू हैव नोटबुक एंड पेन? यू कैन टेक. तो अब आप लिखेंगे कि आई, वी, यू और दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो. आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स जैसे लड़के, बॉयज, गर्ल्स, लड़कियां, बहुत सारे लोग है ना, तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. केवल जैसे रीड है तो रीड, राइट है तो राइट, आप उसमें SEIS नहीं लगाएंगे. अब बात कर लेते हैं. लिखो ही, HE, ही मीन्स वह होता है. ही और शी, गर्ल के लिए शी का यूज होता है, ये तो पता होगा ना. तो ही, शी और इट. जैसे एनिमल्स के लिए हम इट लगाते हैं, डॉग है तो इट यूज करते हैं काऊ के लिए. तो इट और सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब वन पर्सन है, जैसे गर्ल है, बॉय है, या किसी का नेम है. नेम हो गया, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, या ही और सी हो गया. तो इसके साथ वर्ब में एस लगाते हैं. ये लिख लो, वर्ब में SEIS लगाते हैं. इन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में SEIS का यूज करते हैं. ये क्लियर हो गया? तो अब कुछ थोड़ा सा समझ में आया? मान लीजिए आप सिंपल सेंटेंस देखो. मैं चलता हूँ, आई वॉक. मैं रोता हूँ, आई वीप, है ना. मैं खेलता हूँ, आई प्ले. ऐसे बनेगा. अब अगर इन्हीं सेंटेंसेस में आपने बोला कि रीमा दौड़ती है, तो रीमा रन नहीं होगा, रीमा रन्स. एस ऐड किया ना क्योंकि नाम है. फिर रीमा रोती है तो रीमा क्राइज, एस लग जाएगा. या रीमा वीप्स, वीप माने भी रोना. रीमा हंसती है तो रीमा लाफ्स, लाफ में एस लग जाएगा. रीमा लिखती है, रीमा राइट्स. मैं लिखता हूँ, आई राइट. मैं लिखता हूँ, आई राइट. रीमा लिखती है, रीमा राइट्स. ओके, वेरी सिंपल. अब आगे के जो भी शब्द इसमें जुड़ जाते हैं, जैसे मान लीजिए लॉन्ग सेंटेंस बन गया. अभी तो ये छोटा सा था कि मैं लिखता हूँ, तो आई राइट. अब बड़ा सेंटेंस बोल दिया जाए, मैं कहानी लिखता हूँ, तो बहुत सिंपल है. पहले आपको आई राइट ही बोलना है, फिर कहानी लिखता हूँ, स्टोरी आ जाएगा, आई राइट अ स्टोरी. ओके. अब आपने लिखा कि मैं शाम को स्टोरी लिखता हूँ, मैं शाम को स्टोरी लिखता हूँ, तो आप बोल देंगे आई राइट अ स्टोरी इन द इवनिंग. आ रहा समझ में? अब आपको कहना है मैं एक अच्छी कहानी लिखता हूँ. अच्छी कहानी, तो किसी भी चीज की जब क्वालिटी बताते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, तो वो तो ऑब्जेक्ट से पहले आता है ना शब्द, नाउन से पहले आएगा. तो आई राइट अ गुड स्टोरी, ऐसे बन जाएगा, है ना. अब मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, वो बना के बताओ. मैं पानी पीता हूँ. आई एम ड्रिंकिंग द एम क्यों वाटर. लगा? एम एम क्यों लगाया? आदत में है. एम तो मैंने बताया नहीं किन सेंटेंसेस में एम लगेगा. आई मैं गेट पानी द पीता हूँ, आई, फिर आ जाएगा ड्रिंक. आई ड्रिंक द वाटर. वेरी गुड. आई ड्रिंक वाटर. ओके. एम नहीं लगाना है इन सेंटेंसेस में. मैंने कहीं कहा कि आप इज लगाना, आर लगाना, एम लगाना? इन सेंटेंसेस में जितने भी सेंटेंसेस ऐसे हैं कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं गाता हूँ, जाता हूँ, आप देखिए लास्ट में क्या यूज हो रहा है, ता का शब्द यूज हो रहा है कि एक्शन वर्ड आ रहे हैं ना. खाना, पीना, जाना. मैं खाता हूँ, पीता हूँ, जाता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ. ये सारे सेंटेंसेस में आपको एम का यूज कहीं नहीं करना है. ओके. वो दूसरे सेंटेंस होते हैं जिसमें एम का यूज होता है. ये नहीं होता है कि अगर आई हमने बोला है तो एम का जरूर यूज कर दो. नहीं, सारे सेंटेंसेस में नहीं होता है. ठीक है. मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर. ओके. अब अगर आपको कहना है मैं ठंडा पानी पीता हूँ, तो कैसे बनेगा? आई ड्रिंक कोल्ड वाटर. वेरी गुड. आई ड्रिंक कोल्ड वाटर. ठीक है, ये क्लियर हो गया. अब अगर आप कहें कि मेरी मम्मी ठंडा पानी पीती हैं, तो कैसे बनेगा? माय मदर ड्रिंक कोल्ड वाटर. अब यहाँ पे आपने क्या बोला, फिर से क्लियर बोलो. माई मदर ड्रिंक कोल्ड वाटर. ड्रिंक्स मदर यूज ड्रिंक्स कोल्ड करना है. वाटर. हाँ, यही चीज बस याद रखनी. हमने आपको भी जो लिखवा दिया है कि आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब आएगी,
और जैसे ही आपका ही शी या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा आप उसमें वर्ब में एस ऐड करके बोलेंगे नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, आई ड्रिंक कोल्ड वाटर, माई मदर ड्रिंक्स कोल्ड वाटर। ओके, अब जैसे आपने कहा मैं सच बोलता हूँ, सच बोलने की इंग्लिश आती है? नहीं। स्पीक द ट्रूथ। Truth. ट्रूथ माने सत्य होता है और स्पीक माने बोलना। तो मैं सच बोलता हूँ तो कैसे बोले, इसको कन्वर्ट करो। I speak truth. आई स्पीक द ट्रूथ। सही है, आई स्पीक द ट्रूथ, मैं सच बोलता हूँ, आई स्पीक द ट्रूथ। अब आप इसी जगह अगर बोले कि मेरा दोस्त झूठ बोलता है, नहीं चलो इसी को बनाओ, मेरा दोस्त सच बोलता है, इसको बनाओ, तो क्या चीज चेंज हो जाएगी? My friend speaks truth. वेरी गुड। तो ये चीज समझ में आ गई ना कि फ्रेंड जो था, तो मैम ने बताया था कि फ्रेंड के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ऐड करना है और आई के साथ वर्ब में एस नहीं ऐड करना। नहीं अरे ओके, इसी चीज को समझो, आज इसी चीज को समझो। ज्यादा सिखाऊंगी दूसरी चीजें तो माइंड पजल्ड हो जाएगा। तो अब आपका होमवर्क है, आपको अपने पूरे दिन के काम लिखने हैं। ठीक है, आप क्या क्या करते हो आप लिखोगे। मैं खाता हूँ, मैं उठता हूँ। आप खाता हूँ के साथ आप ऐसे भी बोल सकते हो, मैं ब्रेड खाता हूँ, मैं एप्पल खाता हूँ, मैं पक्के फल खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, है ना, मैं साइकिल चलाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं मतलब कितने सारे एक्शन वर्ड हैं, उनका यूज करके आप ऐसे ऐसे हिंदी में सेंटेंस लिखें, फिर उसे आप कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट आप ये भी सेंटेंस बनाएं कि मेरा दोस्त मेरे साथ खेलता है, मैं दोस्त के घर जाता हूँ, मेरे दोस्त, या आप कोई भी तुम खाना खाते हो, तुम पानी पीते हो, है ना। और अपने मम्मी के बारे में लिख सकते हो, मेरी मम्मी सुबह जल्दी उठती है, मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बनाती है, मेरी मम्मी सफाई करती है घर की, है ना, मेरी मम्मी कपड़े धोती हैं, मेरे पापा बाजार जाते हैं, मेरे पापा सब्जी लाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे सेंटेंसेस तुम्हारे ऐसे ही बनने चाहिए कि वो ये करता है, वो ये करता है। ठीक, तो ऐसे जितने सारे सेंटेंस आप बनाएंगे उनकी इंग्लिश फिर बनाना। फिर आप जब उसे इंग्लिश सबकी बना देना, मेरे पास स्क्रीनशॉट लेके मेरे इसी वाले स्काइप के आईडी पे सेंड कर देना स्क्रीनशॉट। अगर मुझे टाइम मिल ओके जाए तो मैं देखूंगी कि तुम सही से समझ गए हो कि नहीं समझे हो। ओके, ओके और जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी कि तुम्हें बहुत से वर्ड्स की इंग्लिश नहीं आएगी, तो उन्हें गूगल पे जाके सर्च करो, उन्हें लिखो और याद करो। ओके, ठीक है, चलना फिरना घूमना, जैसे अभी तुम्हें सच बोलने की नहीं आ रही थी, या झूठ बोलने की हो गई, है ना, लाना हो गया, खरीदना हो गया, बेचना हो गया, कितने सारे एक्शन वर्ड्स हैं, कम से कम मैक्सिमम 50 या 60 तो तुम्हें याद ही कर लेने चाहिए, जो हम डेली यूज में यूज करते हैं। डेली यूज में बहुत सारे काम होते हैं ना, तुम 50-60 एक्शन वर्ब लिख लो और उन्हें याद कर लो। ओके, और बस यही होमवर्क करना तुम्हारा। ओके, ओवर। तो जो मैंने थैंक यू इतनी सारी चीजें समझाई, ये सारी समझ में आ गई? ओके, so whenever you have time you can send me message, otherwise if I will be free so I will send you a message. Okay, थैंक यू it's my pleasure. Bye bye.